بعد عام انتخابات کی نتائج تو سامنے آ چکے ہیں، لیکن اس حوالے سے اگر بات کی جائے مسلم لیگ نون کے صدر کی تو ان کی جانب سے باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی اور کہا کہ آزاد امیدوار اپنی اکثریت دکھا دے ہم ان کی حکومت تسلیم کریں گے، جبکہ وفاق میں ہماری تعداد 80 ممبران تک پہنچ چکی ہے۔ اور مزید پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 2018 میں جعلی ہتھ کنڈوں سے ہرایا گئے، لیکن ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ مزید کیا کہا آپ بھی سنیے۔ آزاد ممبران وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی سپانسرڈ کہیں یا نان پی ٹی آئی سپانسرڈ کہیں، اگر وہ حکومت بنا سکتے ہیں بڑے شوق سے بنائیں۔ پریزیڈنٹ نے ان کو دعوت نہیں دینی، کیونکہ اب آئین کا منشا اور تقاضا یہ ہے کہ ہاؤس خود جس کی بھی تعداد زیادہ ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو وہ فیلڈ کرتے ہیں، ایک پروسیس ہے، اسپیکر کے پاس باقاعدہ وہ جمع ہوتے ہیں اور پھر اس پر ووٹنگ ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آزاد ممبر جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی سپانسرڈ کہتے ہیں بڑے شوق سے حکومت بنائیں، ہم اگر وہ میجورٹی دکھا دیں گے ہم بڑے شوق سے ہم بیٹھیں گے اپوزیشن بینچز پہ اور اپنا جو ایک آئینی کردار وہ ہم ادا کریں گے انشاءاللہ۔ 2018 میں ہمیں ایک جھرلو کے ذریعے، جعلی ہتھ کنڈوں کے ذریعے ہمیں جب ہروایا گیا تو نہ ہم نے کسی کو گالی دی، نہ ہم نے کسی مقام پہ جا کر گھراؤ جھراؤ کیا، نہ ہم نے کوئی گملہ توڑا، نہ ہم نے کوئی لانگ مارچز کیے۔ ہم نے یقیناً پارلیمنٹ میں جا کے کالی پٹیاں باندھ کر جو ہمارا حق تھا ہم نے اس کے اوپر احتجاج کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں ایک سے زائد نشستوں پر ایک امیدوار کی کامیابی کا معاملہ ہے۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کا این اے 117 کی سیٹ برقرار رکھنے کا امکان ہے۔ علیم خان پی پی 149 کی صوبائی اسمبلی کی نشست چھوڑیں گے، جبکہ مریم نواز کی طرف سے این اے 119 کی سیٹ چھوڑے جانے کا امکان سامنے آ چکا ہے۔ لاہور میں ایک سے زائد نشستوں پر ایک امیدوار کی کامیابی کا معاملہ۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کا این اے 117 کی سیٹ برقرار رکھنے کا امکان ہے، جبکہ اگر بات کی جائے پی پی 149 کی تو عبدالعلیم خان پی پی 149 کی صوبائی اسمبلی کی نشست کو چھوڑ دیں گے۔ مریم نواز کی طرف سے بھی این اے 119 کی سیٹ چھوڑے جانے کا امکان ہے۔ لاہور میں ایک سے زائد نشستوں پر ایک امیدوار کی کامیابی کا معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کا این اے 117 کی سیٹ برقرار رکھنے کا امکان ہے، اور اگر بات کی جائے صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کی تو پی پی 149 کی صوبائی اسمبلی کی نشست بھی چھوڑیں گے۔ مریم نواز کی طرف سے این اے 119 کی سیٹ چھوڑے جانے کا امکان سامنے آیا ہے۔ لاہور میں ایک سے زائد نشستوں پر ایک امیدوار کی کامیابی کا معاملہ ہے۔ صدر آئی پی پی کا این اے 117 کی سیٹ برقرار رکھنے کا امکان ہے۔ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی قیادت کا بھی رابطہ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کو ٹیلی فون سیاسی طور پر مشترکہ حکمت عملی پر غور کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی قیادت کا رابطہ ہوا ہے۔ بات کریں گے راحیل علی سے۔ بتائیے راحیل، اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو رہنما تھے ان کے حوالے سے بھی اس طرح کی خبریں گردش کر رہی تھی، اب رابطوں کا سلسلہ عروج پر پہنچ چکا ہے۔ جی، رابطوں کا سلسلہ تو عروج سے پہنچا ہے، چونکہ اگلے ہفتے تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے حتمی نتائج جو ہے وہ جاری کر دینے، نوٹیفکیشن ہو جانے ہیں، تو اس سے پہلے جو سیاسی سرگرمی ہے وہ عروج سے پہنچ چکی ہیں اور جوڑ توڑ کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ اسی حوالے سے تحریک انصاف کے انہوں نے جو بیرسٹر گوہر انہوں نے جو جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ ان سے رابطہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ رابطہ جو ہے یہ کسی میں سے حکومت بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس بات پہ اتفاق کیا گیا ہے کہ دونوں پارٹیاں اس پہ جو ہے وہ بات چیت بھی کریں گی اور اپنا تبادلہ بھی کریں گی، لیکن تاہم ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ابھی کوئی اس پہ جو ملاقات ہے وہ ابھی تک کوئی دونوں جو رہنما ان کے درمیان نہیں ہو سکی ہے۔ صرف ٹیلی فون پہ جو ہے وہ تبادلہ خیال ہوا تھا، کیونکہ لیاقت بلوچ بھی اس وقت لاہور میں نہیں ہے، وہ لاہور سے باہر ہیں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید آئندہ چند روز میں جماعت اسلامی اور جو تحریک انصاف ہے ان کے رہنماؤں کے درمیان باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ملاقات بھی جو ہے وہ طے ہو جائے گی، جس کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل بھی جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ اس وقت جو ہے وہ ٹیلی فونک گفتگو پر دونوں رہنماؤں نے جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ اتفاق کیا ہے کہ جو رابطوں کا سلسلہ ہے وہ جاری رہنا چاہیے، اور کے پی کے میں حکومت اور سازی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مشاورت کی گئی، تاہم اب حتمی جو بات چیت ہے وہ ملاقات میں ہی طے ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا راحیل۔
NA-130 में नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का मामला है और अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत कर दी है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर समाअत की है। NA-130 में नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत कर दी है। समाअत का अहवाल बताएंगे मोहम्मद अशफाक। बताइए अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर समाअत की है, जिसमें ये कहा गया है कि फॉर्म 45 जो कि उनके पास मौजूद है उसके मुताबिक वो भारी मार्जिन से कामयाब हो रही हैं, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 के बरक्स नताइज जारी करते हुए नवाज शरीफ को इस हल्के से कामयाब करार दिया और इसी बुनियाद पर फॉर्म 45 के तहत दोबारा रिजल्ट उम्मीदवारों की मौजूदगी में कंसोलिडेट करने के इक़दाम जारी किए जाए। अदालत ने दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हुए दरख्वास्त गुजार को ये इक़दाम जारी किए कि आप पहले इलेक्शन कमीशन से रिव्यू करें। जी मोहम्मद अशफाक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता रही हैं NA-130 पर जो नताइज थे उस हवाले से डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से बाकायदा दरख्वास्त सबमिट करवाई गई, जिस पर आज समाअत हुई और अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत कर दी है। NA-130 में नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर यह समाअत हुई थी। सियासी मैदान के पुराने शाहसवार असम्बलियों में पहुंचे पहली बार कई नए चेहरे भी अवामी खिदमत का जज्बा लेकर हुए नमूदार। मरीम नवाज, लतीफ़ खोसा और शेख इम्तियाज़ जैसे मंचे हुए खिलाड़ी पहली मर्तबा ऐवान में अवामी मसाइल पर आवाज़ उठाएंगे। ये रिपोर्ट देखें। कई पुराने सियासी खिलाड़ी कौमी और सूबाई असम्बलियों के रुकन मुंतखब। सियासी महाज पर डटी हुई मरीम नवाज की आवाज पहली बार असम्बली में गूंजेगी। साबिक गवर्नर लतीफ खोसा कानून के माहिर मगर पहली बार रुकन कौमी असम्बली बने। जोश खिताबत में मशहूर लीगी रहनुमा ताताड़ भी पहली मर्तबा कौमी असम्बली का हिस्सा। पुराने सियासी खिलाड़ी ओन चौधरी भी मुंतखब नुमाइंदे का हल्फ उठाएंगे। पंजाब असम्बली का ऐवान भी कई नए और पुराने चेहरों से जगमगाएगा। तहरीक इंसाफ के शेख इम्तियाज और अली इम्तियाज वड़ाइश पहली बार रुकन मुंतखब। हाफिज फरहद अब्बास और फरूख जावेद मून मिसबा वाजिद भी पहली बार MPA बने। मुस्लिम लीग नून के खालिद परवेज और इरफान शफीक होकर भी पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। ऐवान में आने वाले इन नए चेहरों की सियासी जद्दोजहद तो अरसे से जारी है, मगर ऐवान में पहली बार अवामी नुमाइंदगी का ख्वाब पूरा करते हुए नजर आएंगे। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी अमीरुल हसीम मंसूर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। लेकिन किसी भी RO के दफ्तर में किसी भी पार्टी के पोलिंग प्रिंसिपल एजेंट को या उम्मीदवार को जाने की इजाजत नहीं दी गई और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का बहाना बनाया गया। कुछ लोग इकट्ठे भी हुए तो उनके ऊपर वहां पर पुलिस लाठीचार्ज वगैरह की रिपोर्टें भी जो है ना वो मिली। ये बात साबित करती है कि इलेक्शन की टैबुलेशन के अंदर धांधली नहीं बल्कि झुरलू फेरा गया है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इस्लामाबाद में मियां असलम साहब के 19,000 के वोट को उन्होंने 1-0 खत्म करके 1900 कर दिया। खलीक भट्ट साहब के यहाँ के रिजल्ट जो पहले जारी किए गए, जो जनाब नवाज शरीफ के हल्के में इलेक्शन लड़ रहे थे, वहां 0-0 कर दिया गया। ये बातें हमारी कौमी मीडिया के अंदर भी उस रोज डिस्कस हुई और हमने ये देखा कि 8 घंटों के लिए नताइज रुक गए, जैसे रेलवे की गाड़ी किसी जगह पर खड़ी हो जाती है और सफर आगे नहीं चलता। ये काम यहां पर होता रहा है। फिर जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर ने भी आकर, चीफ इलेक्शन कमीशन ने भी आकर वार्न किया था कि अगले चंद घंटों के अंदर रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन वो भी रिजल्ट नहीं आए। उनकी भी वार्निंग जो है, लगता यह है कि इलेक्शन कमिश्नर भी बेबस थे और मामलात कहीं और तय पाए जा रहे थे। अब जो कुछ आहिस्ता आहिस्ता क्लिप्स आने शुरू में, खास तौर पर कराची के हवाले से कि किस तरह से नकाब पोशों ने वहां पर कब्जा कर लिया। पुलिस और रेंजर्स के सिपाही भी उन क्लिप्स के अंदर नजर आ रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने वहां पर गड़बड़ की है। किसी ने सामने आई हुई इस खुले सबूत का भी
अब तक कोई नोटिस नहीं लिया। मसला इलेक्शन में हार जीत का नहीं है, मसला इंतखाबात के तकद्दुस का है। हम समझते हैं कि हमसे सीटें कराची की भी छीनी गई हैं, दीर की छीनी गई हैं, नोटिफिकेशन के बाद दोबारा छीनी गई हैं। इसी तरह से हमारे जितने भी कैंडिडेट जहां जहां पर मौजूद थे उनके वोट्स को भी किसी और के वोट बैंक में जमा कर दिया गया। इसके भी सबूत जो है ना वो मौजूद हैं। सूरत यह है कि अगर इसका नोटिस ना लिया गया तो पाकिस्तान के कौमी इंतखाबात में जिस तसलसल के साथ मुदाखलतें जारी हैं, आइंदा ये और बढ़ती चली जाएगी और इलेक्शन के दिन ही नई हुकूमत का जनाजा निकलना शुरू हो जाएगा। इस पूरी सूरत हाल को सामने रखते हुए हम 3 इकदाम तय कर रहे हैं। पहला कदम तो यह है कि जमात इस्लामी के जितने उम्मीदवार जहां जहां इलेक्शन लड़ते रहे हैं वो अपने इलेक्शन के हवाले से शिकायत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजें इब्तदाई, ताकि हमारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर आ जाएं। हर कौमी और सूबाई सतह का जमात इस्लामी का उम्मीदवार अपने तमाम सबूतों के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शिकायत भेज रहा है। दूसरी बात यह है कि हम 16 फरवरी जुमे वाले दिन इस्लामाबाद के अंदर इस जुर्लू के खिलाफ एहतजाज धरना दे रहे हैं और इसमें जमात इस्लामी के कारकुन, वोटर जो भी हैं वो इंशाअल्लाह शरीक होंगे और ये इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के बाद हम एहतजाजी कॉल दे रहे हैं। तीसरी चीज इससे भी ज्यादा अहम है कि इंतखाबात के तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए ये हुकूमत जो डटाई के साथ सफाइयां दे रही है ये दमखम दिखाए और कानूनी प्रोसेस इख्तियार किया जाए। और कानूनी प्रोसेस के लिए जरूरी है कि ये हुकूमत अदालती कमीशन की तरफ जाए और चीफ जस्टिस से एक अदालती कमीशन बनवाया जाए। यह हुकूमत ही के कहने पर बनेगा, बजाय इसके कि लोग सड़कों के ऊपर आए, एहतजाज हो, मारामारी हो और पुलिस और इंतजामिया एक दूसरे के सामने कोई दुश्मनों वाला सलूक हो, लाठीचार्ज हो, हड़तालें हो। इसके बजाय कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए। इस अदालती कमीशन में तमाम स्टेक होल्डर्स पहुंच सकते हैं, आजादाना उसकी कार्रवाई हो। और पिछले कुछ अरसे से हमारे चीफ जस्टिस ने अपनी अदालती कार्रवाइयों को ओपन कर दिया है और मीडिया पे नशर करते हैं। तो इसी तरह से इस अदालती कमीशन की पूरी कार्रवाई को मीडिया के जरिए ओपन किया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसके नतीजे में ही सूरत हाल बेहतर होगी, वरना नई हुकूमत किसी की भी बन जाए, जब तक ये असल मसला ठीक नहीं होगा ये नज़ाकतें भी पैदा होंगी और हुकूमत की आगे बढ़ने की रफ्तार जो है वो खत्म होती चली जाएगी और मामला क्लैश की तरफ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मौजूदा अबूरी जो भी हमारी इस वक्त हुकूमत है ये काम। नई हुकूमत से पहले पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारी। डीजल 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान है। सरा के मुताबिक पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी जा सकती है, जबकि लाइट डीजल ऑयल 2 रुपये 82 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की जो है वो तैयारियां जो है वो की जा रही हैं और नई हुकूमत बनने से पहले ही जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जो है वो इंदिया दिया गया, जिसमें डीजल 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर तक महंगा किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक लाइट डीजल की कीमत जो है 2 रुपये 82 पैसे फी लीटर तक बढ़ाई जा सकती है, जबकि मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत जो है 1 रुपये 7 पैसे फी लीटर तक का इजाफा हो सकता है। खाम तेल की कीमतों में गुज़िश्ता 15 अय्याम में आलमी मार्केट में जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है और फी बैरल $70 से महंगी होकर $82.07 तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं
بڑھانے کا امکان ہے. تاہم پٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ موجودہ سطح پر برقرار رکھنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا, کیونکہ جو ڈیزل کی قیمت ہے وہ ₹7.50 اور مٹی کے تیل کی قیمت ₹1.60 فی لیٹر تک بڑھانے کا امکان ہے. جی آپ کا بہت شکریہ عبد القادر.